والصلاة والسلام على لا يعلم الیستوی الاعمی والبصیر. صحابہ، اساتذہ اکرام، معزز والدین، بہت ہی ننھے منھے پیارے بچوں اور بچیوں، بالخصوص قرآن پاک کے حافظ، ان کے قاری اور تمام ان بچوں کو جو قرآن پاک کی تعلیم میں مصروف عمل ہیں، میں آج کی اس انتہائی بابرکت تقریب میں مجھے اس مدعو کرنے پہ جناب مختار صاحب، جناب خواجہ آصف صاحب کے دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں. محترم خواجہ آصف صاحب ایک ماہر تعلیم ہی نہیں، آپ دانشور بھی ہیں، آپ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، آپ اور ان کے رکھ رکھاؤ کو نبھانا خوب جانتے ہیں. تو سچی بات ہے، یہ تعلیمی ادارہ چلانا، تعلیم و تعلم کی تعلیم دینا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، سب کے ساتھ موجود ہے. آج تو پتہ چل کے اسٹیج پہ ہمیں آئے ہوئے، اور آپ لوگ جانتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گھر والے ساتھ ہوں، وہ پروجیکٹ ضرور کامیاب ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ اسی لیے آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کا ادارہ بھی کامیاب ہے. قابل احترام میری بہنوں، میری بیٹیوں اور بچوں، یہ یاد رکھیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. کوئی کامیاب اس وقت تک کوئی گھر کا ہمکنار نہیں ہو سکتا، کوئی ادارہ اس وقت تک کامیابی سے انکار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پروجیکٹ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کی فیملی ان کے ساتھ نہ ہو. تو مجھے آج پتہ چل گیا خواجہ آصف صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. آج میں جا کے اپنی اہلیہ محترم کو ان کی تصویر دکھاؤں گا خواجہ آصف صاحب والی. حضرات، اب میں گزارش کرنے چلا ہوں کہ دیکھیے، میری گفتگو کا پہلا حصہ اساتذہ کرام کے لیے ہے اور دوسرا حصہ والدین اور بچوں کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بورڈ پہ ایک بہت بڑی سلوگن اور نعرہ لکھا ہوا ہے. یہ سمپل نعرہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. یہ دعا ہے، کون سی دعا ہے؟ جو میرے اور آپ کے آقا نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت بڑی کامیابی ہے یہ. ہر ایک میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہے، ہر استاد یہی، ہر بچہ یہی، ہر والد یہی، ہر باپ کا یہی، یہاں پہ جو سارے شرکا موجود ہیں، یہ سارے کیا چاہتے ہیں؟ کامیابی چاہتے ہیں، حسنہ چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. قابل احترام معزز بہنوں، بھائیوں، قابل احترام انتہائی اساتذہ اکرام، میرے ننھے منھے بچوں، آپ دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم بحیثیت مسلمان آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں. میری اور آپ کی بھلائی کیا ہے؟ کامیابی ہے. آج جن بچوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، جن بچوں نے سیکنڈ لی، جن بچوں نے تھرڈ لی، جنہوں نے جو بیسٹ ٹیچر کا جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیا، سچی بات ہے ان کے دل کو آپ ٹٹولیں، ان کی خوشی کا آپ اندازہ لگائیں. جو بچے کامیاب ہوئے الحمدللہ اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، ان بچوں کے اس ایٹیٹیوڈ اور مزاج کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی کامیابی اور ان کی خوشی کو میسر کر سکے. یہ خوشی خاص طرح کی خوشی ہوتی ہے. قابل احترام شرکائے محفل، اگر آپ کو ہم بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی ساری کامیابیاں نصیب فرمائے،
क्योंकि आपके स्कूल का स्लोगन ये है, आपके स्कूल का मोनो भी यही है कि आपके दारुल अरकम स्कूल ने यह लिखा है, या अल्लाह हमें दुनिया की कामयाबियां नसीब फरमाए, हमारा हाथ ऐसे ना हो बल्कि मेरा और आपका हाथ ऐसे हो, लेने वालों में ना हो बल्कि देने वालों में हो। ये दुनिया की कामयाबी है। मेरी और आपकी औलाद हमेशा मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया हो जाए। मैं और आप जब इस दुनिया में ना हूँ तो मेरा और आपका अकाउंट मुझ में ना हो, मेरा और आपका अकाउंट बंद ना हो जाए। जैसे बैंक के अंदर पैसे ना हो तो बैंक वाले क्या करते हैं बता दीजिए, वो बैंक बंद हो जाता है, बैंक के अंदर अकाउंट बंद हो जाता है, ट्रांजैक्शन उसमें बंद हो जाती है। काबिल एहतराम मेरी बहनों, आप लोगों का बहुत अहम रोल है। आप माए हैं, आप लोगों के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। आप फैमिली की सरबराह है। कहते हैं किसी खानदान के अंदर अगर कोई एक मर्द तालीम याफ्ता हो तो वो अकेला एक मर्द तालीम याफ्ता होता है, लेकिन अगर किसी खानदान के अंदर कोई फैमिली के अंदर माशरे के अंदर कोई एक औरत तालीम याफ्ता हो तो वो पूरा माशरा तालीम याफ्ता होता है, पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। लिहाजा सच्ची बात तो यह है, आपने इस कौम की आबियारी करनी है, आपने इस कौम को उठाना है, आपने इस कौम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जो बच्चे जो हैं उनकी परवरिश करनी है। आपके लिए हजारों सलाम है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हालात पहले जैसे नहीं रहे। ख्वाजा आजम साहब, इनकी पूरी टीम, असातिज़ा इकराम, ये माशाल्लाह 5-6 घंटे इनके पास बच्चे आते हैं, ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि 6 घंटे या 5 घंटे बच्चे स्कूल में रहे, बाकी 12 घंटे जो हैं, बाकी जो है कितने घंटे बच्चे आपके पास होते हैं, घरों के अंदर होते हैं। असातिज़ा स्कूल में जो कुछ मर्जी पढ़ाएं, लेकिन वालिदैन अगर उन बच्चों की बेहतर परवरिश ना करें, वालिदैन उनकी देखभाल ना करें, वालिदैन उनको ना पूछे कि बेटा आज क्या पढ़ के आए हो, क्या सिखाया गया है, आपका होमवर्क क्या है। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं ये तालीमों तल्लक के तमाम फराइज से बखूबी आगाह हूँ, इसलिए आप बहनों से ये गुजारिश करने चला हूँ कि असातिज़ा का रोल अपनी जगह बहुत अहम, एडमिनिस्ट्रेशन का, ख्वाजा साहब का रोल अपनी जगह बहुत अहम, लेकिन आप लोगों का जो किरदार है, आप लोगों का जो रोल है, इसका कोई मुबादला नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये आपको दारुल अरकम एक बहुत बड़ी ब्रांच है हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर, तालीमी निज़ाम के अंदर दारुल अरकम स्कूल सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे, कामयाब बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। अभी 3 किस्म का ये हफ़ाज़े कुरान का उनका सिस्टम मौजूद है, उनका पूरा सेंट्रल सतह पे पूरा इम्तिहानात का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे उनका जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स पे मबनी वो बोर्ड है, माहिरीन तालीम का बोर्ड, वो पूरी उसकी मॉनिटरिंग है, पूरी सिस्टम को, असातिज़ा इकराम को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सिस्टम उनका सपोर्ट करता है। लेकिन ये तो अपनी जगह पे इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। सबसे अहम जिम्मेदारी वालिदैन और बिलखुसूस वालिदा की है। आखिरी में आप लोगों से गुजारिश करूँगा बच्चों के हवाले से कि बराए मेहरबानी ये मोबाइल अब आप लोगों की बहुत बड़ी आजमाइश है। मोबाइल आप लोगों की बहुत बड़ी आजमाइश है। 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा या बच्ची वो मोबाइल नहीं छोड़ता, और माएँ जो हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़ी आसानी के साथ बच्चों को वो मोबाइल दे देती हैं, और उसमें इस तरह के कार्टून होते हैं, इंडियन जो मीडिया उसका बनाए हुए कार्टून, ऐसी चीज़ें, वो जो मेरा और आपका जहाँ ज़हन और दिमाग खत्म होता है वहाँ पे उन बच्चों का आगाज होता है। आज ये बच्चे 2024 के बच्चे हैं, आज ये 1910, 1920, 1950 के बच्चे नहीं है। इनका IQ लेवल बहुत तेज है।
3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा मोबाइल को इस तरह ऑपरेट करता है, मैं और आप खुद हैरान परेशान होते हैं। हम बार बार हंसते भी हैं और अपनी कामयाबी बताते हैं बात है कि मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरा बेटा वो मोबाइल को इस तरह इस्तेमाल कर लेता है, ये लगा लेता है, वो फला फंक्शन करता है, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काबिल एहतराम बहनों, मेरी इज्जत माँ और बहनों और बेटियों, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, बराए करम ये मोबाइल एक बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे लिए, उसके इस्तेमाल को मिनिमम करें। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो कंप्यूटर की आला तालीम हासिल करेगा, जब उसको खैर और शर का मालूम हो जाएगा, अच्छे और बुराई का मालूम हो जाएगा, तो फिर अच्छे से अच्छा मोबाइल लेकर दें, अच्छे से अच्छा लैपटॉप देकर दें। तो ये मेरी और आपके इस मौके पर बहुत बड़ी आजमाइश है। मैं आखिर में ये आप लोगों से आखिरी गुजारिश करूंगा बहनों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर फिर रमजान और मुबारक की नेमत अता दी, और आज है 13 रमजान और पिछले गिनती के अय्याम मौजूदात गिनती के चंद दिन रह गए। तो क्या मैं और आप, मुझे और आपको पता चले कि मिली वालों ने, मुझे और आपको पता चले कि जे डॉट वालों ने, मुझे और आपको पता चले कि फलां जो हमारी खवातीन बहनों का कोई फैशन हाउस वालों ने कपड़ों में सेल लगा दिया है, तो हम क्या करते हैं, भागे उसमें चले जाते हैं। 50% सेल है, 40% सेल है जनाब, 60%, 5,000 का सूट 2,500 में मिल रहा है जनाब, 10,000 का सूट जो है वो 4,000 में मिल रहा है। इसी तरह शूज के अंदर तो हम किस तरह भागे चले जाते हैं, सारी मसरूफियात छोड़ देते हैं। खाजा साहब को हमारी भाभी कपड़े नहीं बदलने देगी, कहते इसी सूट पर ठीक है, चलते हैं आज कुछ कपड़े ले आते हैं, छूट ले जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है, ये अल्लाह ताला ने मेरे और आपके गुनाहों को बख्शने के लिए सेल लगा दी है, तो इस वक्त से फायदा उठाइए। अब नफल का दर्जा जो फर्ज के बराबर और एक नेकी कई गुना बढ़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, ये एक हर्फ नहीं है, एक लफ्ज नहीं है, बल्कि एक अलफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। तो एक अगर कोई आदमी तिलावत करता है अल्फ लाम मीम, तो उसको 30 नेकियां मिलती हैं। एक लफ्ज पढ़ेंगे तो फर्ज के बराबर दर्जा मिलेगा। आइए, इसमें लैलतुल कद्र मौजूद है, जिसमें जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर रात है। खुद भी उठिए, मैं आप लोगों को आखिरी नुस्खा बता के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आखिरी नुस्खा क्या है, ये है, आम दिनों में मैं और आप तहज्जुद के लिए नहीं उठते, सारी तो सारे लोग करते हैं, आप लोगों को तो 2:30 बजे उठना पड़ता है, और नहीं तो 3 बजे तो उठना पड़ता है। तो सिर्फ आप 5 मिनट 10 मिनट में 2 नफल पढ़ लें, 4 नफल पढ़ लें, उठ के पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सहरी में बरकत हो जाएगी। आपकी जो पराठे पकाती हैं आप जो सालन पकाती हैं, इंशाअल्लाह थोड़े के अंदर अल्लाह ताला बरकत डाल देगा उसके अंदर। यकीन कीजिए, 2 नफल भी आप वहाँ, और अल्लाह ताला वहाँ पे ऐन मौके पे कहता है कि मैं उस वक्त बिल्कुल इस आसमान के पास आ जाता हूँ, 7 आसमानों के आखिरी आसमान पे आ जाता हूँ, और क्या कहता हूँ, और क्या करता है अल्लाह ताला, क्या फरमाता है, कहता है वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कोई है मांगने वाला, मैं उसकी हर तरह की जरूरतों को पूरा करे। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, मैं तो तुम्हारे 4 हाथ से ज्यादा करीब हूँ। नानू अकरम में हाफिल करीब, मैं बीमारों की दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं जरूरतमंदों की दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं परेशान हाल लोगों की दुआओं को कबूल करता हूँ। मेरा और आपका मालिक और खालिक रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से फिर आखिरी ये बात करके खत्म अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। दोबारा मैं जनाब अपने प्यारे भाई, अपने बुजुर्ग, अपने कायद जनाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मुलाकात का ये बहाना दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह ताला आपकी औलाद को दुनिया के हर मैदान के अंदर, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की आजमाइश और परेशानी से महफूज रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।